All right, students, good morning. Let's start our lecture. Let's start with revision. हमने last lecture में क्या किया था? Right, within last lecture we have seen that is started with the unit 2, that is basic computer architecture. Within that we have seen what is hardware, types of hardware, what is software, types of software, that is system software, application software. Then we have seen that there are 3 types of system software, 2 types of application software, and we have also seen difference between system software and application software. After that, we have seen what is operating system, types of operating system, purpose and functions of operating system. Then we have seen the definition of firmware and example of firmware. After that, at the end of the lecture, we have started with the topic that is 2.1, concept of address bus and data bus, and it is also known as that is bus organization. And we have started with that topic at the end of the lecture. So let's continue with the same topic. First of all, we have seen कि microprocessor कौन-कौन से task perform करता है और more precise कौन-कौन से function perform करता है. Then we have seen that there are 4 different kinds of main functions, that is to read and write from the memory and to read and write from IO devices, that is input output devices. Then we have seen that to perform these 4 functions, microprocessor perform 3 steps. पहला step कि वो peripheral devices या फिर memory को identify करेगा. Second, वो data transfer करेगा, and along with that वो signals भी transfer करेगा. Right? So these are the 3 steps कि जो CPU perform करता है ये 4 operations करने के लिए, या फिर we can say that ये 4 functions perform करने के लिए. All right. Then we have seen what is bus. राइट जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रैवल करना है तो आप बस यूज करोगे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. लाइकवाइज अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर डेटा या फिर एड्रेस या फिर सिग्नल्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना है तो हमारे कंप्यूटर में जो वायर्स यूज होते हैं उसे हम बस कहते हैं. ये आपने डायग्राम भी देखा था, राइट. दिस इज वन बस एंड दिस बस कंसिस्ट ऑफ पैरेलल वायर्स. ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक बस बहुत सारे वायर्स से बना हुआ है, राइट. So these are the things which we have covered in last lecture related to the topic that is 2.1 concept of address bus and data bus. Now let's continue with the topic that is what is address bus, right. We can say that address bus वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल पाथ होता है जो CPU, मेमोरी और दूसरे जो हार्डवेयर डिवाइसेस है उसे मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है, राइट. क्यों कनेक्ट करता है? तो ऑब्वियसली एज द नेम ऑफ द बस इज डेटा बस, तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए मदरबोर्ड के साथ ये जो सारे मैंने डिवाइसेस बोले वो कनेक्ट करने के लिए डेटा बस हम यूज करते हैं, राइट. डेटा बस के अंदर एक बस के अंदर कितने नंबर ऑफ वायर्स है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि उसकी स्पीड कितनी होगी. अगेन आई रिपीट, वो एक बस के अंदर कितने पैरेलल वायर्स है. ये देखो, ये जो एक बस है, दिस इज वन बस, उसके अंदर ये कितने पैरेलल वायर्स अटैच है, राइट. उसके ऊपर डिपेंड होगा कि ये डेटा बस की स्पीड कितनी होगी. मतलब वो कितनी स्पीड से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा को पहुंचाएगा. That is, data will be travel between one hardware component to another hardware component. और उसकी स्पीड ये जो वायर्स होते हैं within that bus उसके ऊपर डिपेंड होगा. क्यों ऐसा होगा? Because one wire can transfer 1 beat at a time. Again I repeat, एक वायर 1 बीट एट अ टाइम ट्रांसफर कर सकता है. इट मीन्स कि अगर ये डेटा बस 8 बिट्स मतलब 8 वायर्स से बना है तो वो 8 बिट्स ट्रांसफर कर सकता है. और अगर ये डेटा बस 16 वायर्स से बना है, इट मीन्स कि ये एट अ टाइम 16 बिट्स ट्रांसफर कर सकता है. मतलब जितने ज्यादा पैरेलल वायर्स होंगे उतनी ज्यादा बिट्स एट अ टाइम वो ट्रांसफर कर सकेगा, राइट. दैट्स व्हाई वी कैन से कि अगर हम 8 वायर बस की बात करें तो वो
8 बीट्स एट अ टाइम ट्रांसफर करेगा, दैट्स व्हाई वी कैन सी वो 1 बाइट एट अ टाइम ट्रांसफर करेगा। वो तो हमें पता ही है दैट द ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। दैट्स व्हाई वी कैन से कि अगर 8 वायर बस है तो वो 8 बिट ट्रांसफर करेगा, मीन्स वो 1 बाइट एट अ टाइम ट्रांसफर कर पाएगा, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन से कि अगर हमें स्पीड मेजर करनी है कि कितनी स्पीड से डेटा बस डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक बस के अंदर कितने वायर्स अटैच है। अगर 8 वायर्स है तो 8 बिट ट्रांसफर कर सकता है, 16 वायर्स है तो वो 16 बिट ट्रांसफर कर सकता है, और अगर वो 32 बिट वायर है, मतलब 32 वायर्स है, तो वो 32 बिट्स एट अ टाइम वो ट्रांसफर कर सकता है, राइट। सो अगर हम 16 बिट बस की बात करें, देन वी कैन से इट कैन ट्रांसफर 2 बाइट्स एट अ टाइम, और अगर हम 32 बिट्स बस की बात करें, देन वी कैन से इट कैन ट्रांसफर 4 बाइट्स एट अ टाइम। Obviously, 8 4s are 32 and 8 2s are 16, right? Now the thing is that there are two different types of architecture, right? जो 16 बिट डेटा बस को सपोर्ट करता है, राइट, वो बस के आर्किटेक्चर को कहते हैं ISA, दैट इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। अगेन आई रिपीट, जो 16 बिट डेटा बस होता है, राइट, वो जिस आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड है, दैट आर्किटेक्चर इज नोन एज ISA, दैट इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। और अगर वो 32 बिट बस है, मीन्स वो 32 बिट्स एट अ टाइम ट्रांसफर कर सकता है, देन दैट आर्किटेक्चर ऑफ द बस इज नोन एज EISA, that is extended industry standard architecture, right? 32-bit bus is also known as EISA bus, that is extended industry standard architecture, right? So these are the two important terms कि जो आपको याद रखनी पड़ेगी related to the data bus, right? That is 16-bit bus को हम बोलेंगे ISA bus और 32-bit bus को बोलेंगे हम EISA bus, right? Now another type of bus is address bus. Now what is address bus? Obviously the address bus is also a set of wires जो किसे कनेक्ट करेगा, CPU और RAM, एंड किसके लिए वो कनेक्ट करेगा, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मेमोरी एड्रेस को ट्रांसफर कर सके। उस दिन हमने डिस्कस किया था, आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे मेमोरी में से कोई भी डेटा चाहिए तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेमोरी में वो कौन से एड्रेस पर है, कौन से लोकेशन के ऊपर है। आपको याद हो तो मैंने आपके फ्रेंड्स का एग्जांपल दिया था कि अगर आपके फ्रेंड्स को आपके घर आना है तो आपके घर का एड्रेस आपके फ्रेंड्स को पता होना चाहिए, देन ओनली दे विल एबल टू रीच टू योर हाउस। लाइकवाइज अगर मुझे मेमोरी में से कोई भी चीज चाहिए, मतलब CPU को मेमोरी में से कोई भी चीज चाहिए, तो CPU को मेमोरी में वो लोकेशन पता होनी चाहिए, वो लोकेशन का एड्रेस पता होना चाहिए, तो ही CPU वो जगह से डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन को रिट्राइव करके उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर मुझे CPU से RAM, राइट, मतलब एड्रेस ट्रांसफर करना है, तो मुझे एड्रेस बस चाहिए, एंड एड्रेस बस इज मोर स्पेसिफिक कि वो किसके लिए यूज होगा, ऑब्वियसली मेमोरी एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए वो यूज होगा, राइट। सो द थिंग इज दैट उसका आर्किटेक्चर सेम होगा, मतलब वो ऐसा ही दिखेगा जैसे मैंने आपको बताया, राइट, बस जैसा है वैसा ही दिखेगा। ओनली द थिंग इज दैट वो क्या कैरी करता है। पहले हमने देखा कि डेटा बस, तो वो डेटा कैरी करेगा, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एड्रेस बस, तो ऑब्वियसली वो एड्रेस कैरी करेगा, राइट। और अगर हम मेमोरी एड्रेस की पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें, then we can say that the memory address is the reference to the specific memory location, right? किसके लिए यूज होगा, यूज एट वेरियस लेवल्स बाय सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऑब्वियसली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मेमोरी में से अगर कुछ चाहिए तो उसे वो लोकेशन पता होनी चाहिए, और वो लोकेशन के रेफरेंस को हम बोलेंगे मेमोरी एड्रेस। जैसे आपके घर का नंबर होता है, लाइकवाइज मेमोरी के एड्रेस में भी नंबर्स होते हैं, राइट।
नाउ द नंबर ऑफ वायर्स, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जितने ज्यादा वायर्स होंगे एक बस के अंदर उतने ज्यादा वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकता है। जैसे हमने डेटा बस में देखा, लाइकवाइज मेमोरी एड्रेस बस में भी वही चीज है। दैट नंबर ऑफ वायर्स विल डिटरमाइन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेस वो कितने आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर हम CPU में 32 बिट एड्रेस बस की बात करें तो वो 4 GB रैम को एक्सेस कर सकता है। मीन्स अगर आपका कंप्यूटर ऐसा है कि जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपकी रैम 4 GB रैम का कंप्यूटर है, मीन्स यू कैन से कि उसके अंदर एड्रेस बस 32 बिट का होगा। क्योंकि अगर 32 बिट से कम बिट का एड्रेस बस होगा तो वो 4 GB रैम को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर वो 16 बिट एड्रेस बस होगा देन इट विल ओनली एबल टू एक्सेस 2 GB रैम। और यहाँ पे अगर 32 बिट एड्रेस बस है आपके कंप्यूटर के अंदर, राइट, जो CPU के साथ अटैच है, तो वो 4 GB रैम को एड्रेस कर सकता है। मतलब जितने ज्यादा वायर्स होंगे, जितनी ज्यादा बीट वाला एड्रेस बस होगा, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से कि रैम, कितनी रैम को वो एड्रेस कर सकता है, मतलब कितनी रैम को वो एक्सेस कर सकता है, राइट। नाउ द अनदर टाइप ऑफ बस इज कंट्रोल बस। एज वी नो कि अगर डेटा बस डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, एड्रेस बस एड्रेस को ट्रांसफर करेगा, तो कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसफर करेगा, राइट। मीन्स वी कैन से वो क्या करेगा, इट विल कंट्रोल द डायरेक्शन, फ्लो, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ द डेटा। वो बताएगा कि CPU से रैम या फिर रैम से CPU में डेटा को ट्रांसफर करना है, मतलब डायरेक्शन बता सकता है, राइट। कहाँ से इनिशिएट होगा, मतलब उसका ओरिजिन। CPU में से डेटा रैम में ट्रांसफर करने हैं तो CPU विल बिकम द ओरिजिन एंड रैम विल बिकम द डेस्टिनेशन। जैसे हम बोलते हैं कि अगर मुझे सूरत टू मुंबई जाना है तो सूरत मेरा सोर्स होगा और मुंबई मेरा डेस्टिनेशन होगा। लाइकवाइज अगर डेटा को CPU से रैम तक जाना है तो CPU उसका सोर्स होगा और रैम उसका डेस्टिनेशन होगा। लाइकवाइज अगर रैम टू CPU जाना है तो रैम विल बी सोर्स और CPU विल बी द डेस्टिनेशन। मतलब ये सारी चीजें जो बस कंट्रोल करता है, दैट बस इज नोन एज कंट्रोल बस। अगेन आई रिपीट, ये सारी चीजें जो बस कंट्रोल करता है, दैट बस इज नोन एज कंट्रोल बस, राइट। It is made up of single wires that carry signals, right? Synchronization signals मतलब ऐसे signals के जो अच्छी तरह से सारी चीजें कोऑर्डिनेट करेगा, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस में से डेटा आते हैं, राइट, एट द सेम मोमेंट CPU प्रोसेस करके कोई डेटा स्टोरेज यूनिट को देता है और एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि स्टोरेज यूनिट में से आउटपुट यूनिट तक डेटा जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो कोऑर्डिनेट करनी है, मतलब पहले इनपुट डिवाइस को सिग्नल भेजना है कि तुझे इनपुट लेना है, CPU को सिग्नल भेजना है कि तुझे रैम के अंदर डेटा ट्रांसफर करना है, मतलब स्टोरेज डिवाइस के अंदर डेटा ट्रांसफर करना है, स्टोरेज डिवाइस को सिग्नल देना है कि आउटपुट यूनिट के ऊपर डेटा ट्रांसफर करना है। तो ये सारी चीजें एक साथ जो कर सकता है, दैट इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन, राइट। सो सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स वो ट्रांसफर कर सकता है, राइट। सो कंट्रोल बस आर द इंडिविजुअल वायर्स, राइट, कि जो CPU को इंडिकेशन देगा, पल्स देगा, सिग्नल देगा कि उसे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगेन आई रिपीट, कंट्रोल बस इंडिविजुअल वायर्स होते हैं जो CPU को सिग्नल दे सकता है, उसे पल्स भी कहते हैं, पल्स दे सकता है, राइट, कि उसे CPU को पता चले कि उसे कौन से टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सिग्नल्स CPU ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, right? Means we can say CPU generates specific control signals for every operation it performs. मतलब वो जितने भी operations perform करता है वो सारे operations के लिए अलग अलग टाइप ऑफ सिग्नल्स वो जनरेट करता है ताकि उसे भी पता चले, डिवाइसेस को भी पता चले कि कौन से ऑपरेशन को CPU को, मतलब कौन से ऑपरेशन के लिए CPU के साथ उन्हें कम्युनिकेट करना है, राइट। अकॉर्डिंग टू सिग्नल्स डिवाइस भी आइडेंटिफाई होते हैं, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि कंट्रोल बस कौन कौन से टास्क परफॉर्म करेगा।
राइट पहली बात तो कि वो क्या कंट्रोल करेगा, डायरेक्शन, फ्लो, ओरिजिन, डेस्टिनेशन ऑफ डेटा, ये सारी चीजें कंट्रोल करेगा। बाद में वो सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स देगा। दूसरी बात कि कंट्रोल बस तो इंडिविजुअल वायर्स होते हैं जो सीपीयू के ऑपरेशन, मतलब कौन से टाइप का ऑपरेशन पर परफॉर्म करना है, अकॉर्डिंग टू दैट वो सिग्नल्स जनरेट होगा, वो ट्रांसफर करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिग्नल्स हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसे कौन से टाइप के डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है, right? So these are the different things which we need to consider that is related to the control bus. And the last type of bus is power bus, right? Obviously as the name says, power bus क्या transfer करेगा, power transfer करेगा, that is electricity transfer करेगा, ताकि सारी चीजें डेटा ट्रांसफर अच्छी तरह से हो सके, राइट? बिकॉज हमें भी पता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब तक पावर नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये जो बस की जो पूरी चैनल है, उसे वर्क करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, जो पावर की जरूरत होती है, राइट, ये कौन ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा? Obviously power bus will help to transfer power so that bus channel can transfer the data, right? So these are the 4 types of bus. That is address bus जो एड्रेस ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, अनदर इज डेटा बस जो डेटा ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, अनदर इज कंट्रोल बस कि जो कंट्रोल ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, एंड द लास्ट टाइप ऑफ बस इज पावर बस कि जो पावर ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, राइट? So students, topic 2.1 that is concept of address bus and data bus, जिसे आप बस organization भी कह सकते हो, is completed over here, right?